Sir, what do you want? He said, can you please help me lift this burden upon this pile of wood on my head? And Gurudev used to say that, what does it show? He said, this is the mentality of a materialist person. And if there is some such guru who will lift this pile up on her head, what is he doing? He's just, we are already burdened with so many things in this life. We already have so many responsibilities. We already have, you try to solve one problem, 3 problems are ready again. You solve these 3 problems, 9 problems are ready again. So this person, now you have just attained the darshan of the Supreme Personality of Godhead. This woman, she could have asked bhakti, but what did she ask? Can you please lift this pile of wood on my head? So unfortunate. He's saying similarly, when there is the Guru is not bona fide, he will give you instructions how to progress materially. This is the way he is behaving. He's just piling more and more burden on your head. And Bali Maharaj, he actually, in one sense, he rejected his Guru. His Guru said to him, when Vamandev came there to beg some alms, he came in very beautiful, innocent child form, so attractive, so beautiful, so enchanting his voice, such beautiful his face. He came there, and Shukracharya, when he saw him, immediately understood who is he. But Bali Maharaj also understood. And Shukracharya is telling him, he has come to ask you, whatever he asks you, don't give him. Bali Maharaj asked him, why you should not give him? He said, he is the Supreme Personality of Godhead. He will take everything away from him. He said, if Supreme Personality of Godhead comes asking me as a beggar, what better opportunity can I have to give everything to him? And that's why I fulfilled it. And Gurudev said about this pastime, he used to say, actually he went against his Gurudev. So if some Gurudev is giving you instructions, if some Guru is giving instructions to his disciple, so that he will progress materially and not giving spiritual progress, such spiritual master should be rejected. This is the lesson of this pastime, and of course now Pujya Silavan Maharaj will elaborate and speak so many wonderful Hari Katha. God Premanand. Turn it off first. Turn it off. Turn it off. Just if the समय क्यों नहीं? समय तो घड़ी काटा घूमता रहता है, तो आपके लिए थोड़ी अपेक्षा करना है। ना ये तो turn it on. आप बोलो So glass glass इस तरफ. जी Recording करो, glass उस तरफ रख दे. Madhashri has asked to say a few words. So we are all very fortunate that we have assembled here today. Prabhuji, you are also very fortunate that Madhashri has come to your place on such an auspicious day. Today is Vaman Goswami's appearance day, Vaman Maharaj's appearance day, and also appearance day of Jiva Goswami and Bhakti Vinod Thakur. So such a beautiful day we have all gathered here to sing the glories of the Lord and to hear some Hari Katha from Vaishnavas. So Shastra says that this human birth is so important that we have, after so many millions of lives, we get this human birth, and to utilize it in a proper way, you must have collected so much security in your previous life that we have all gathered here today to get into this assembly. As Mahaprabhu has mentioned, that like a glass full of water got millions of jivas. Similarly, in this universe there are millions of jivas, and we are all going from life after life. But it has to be such fortune that of these millions of jivas, so many get the human birth. And after getting this human birth also, you have to be so much fortune that you get into realization that this human birth is meant for something of a higher purpose. And of those who realize this, there are only a handful of
people from that would actually take some action to utilize this human birth. And of those who have taken some actions to utilize this human birth, there will be only a few that will come into a path of bhakti. And of all those who have come in path of bhakti, there will be very few that have come in a line of Guru Parampara or Vaishnava Parampara and to obtain sadhu sangha. So we are all so fortunate that we have actually somehow from our past karmas or some past security that we are all gathered here today. So without mentioning much, I'll ask Maharaj Sri to elaborate on today's topic. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Vanchakalpatribhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I'd like to offer my unlimited Dandavat pranams to the lotus feet of my spiritual master, Nitya Krishna Vishnupada Sitara Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, and to the lotus feet of Sripad Bhaktivedanta Bhan Maharaj, who is present with us here today, and to all the Vaishnavas and Vaishnavis gathered on this very auspicious occasion of Srila Vaman Dwadashi. And we are celebrating also Jiva Goswami's appearance day and Srila Bhaktivinoda Thakur's appearance day all together. So it's a very auspicious day. Yesterday was Ekadashi and also very auspicious, and this month, these 4 months, Chaturmasya, so very auspicious. And the next coming months, following, we're nearing Kartik, so Srimati Radharani's month, it's also very auspicious. But the most auspicious thing is to have the association of a Vaishnava. And we are so blessed today to have Srila Bhaktivedanta Bhan Goswami Maharaj in our presence today, that we actually cannot recognize our good fortune. Why? Because we're actually orphans. An orphan is actually without parents, and they doesn't know their parents. But somehow, by the mercy of the Lord, we have been able, Krishna has sent a parent, a mother and a father together to us in the form of the spiritual master. So if we are lost in this world, although we may have a mother and father, but that mother and father are not able to instruct us in the path of spiritual life. And what is that path? That path is to come out of this repeated cycle of birth and death. Because we have this very beautiful body. We know that we realize that we are not this body. Why? Because we see that the body changes from boyhood to youth to old age, and then we lose the body. So, but what is the essential element in the body? The essential element is the soul. Yeah, this is the thing that is not changing. You know this by your own reflection. You are the same person when you were in your mother's womb, when you were born, when you grew up, and then you became teenager, then you became adult. Same person. When you go older, you can reflect back on your younger years and you can see that you are the same person. But the body is changing. So that's not the real thing, is it? It's not the real thing. It's not the eternal thing that we're looking for, that we need to identify with. Because in most of this world, most people are just living on the identification of the body. That I am this body, and they do everything to please the body, satisfy the body, and they do not remember the soul, the Atma. And what is that Atma, and what that Atma has to do? The Atma has its identity, it has a name, it has a form, it has a quality, it has a seva, a service. But we are lost. We are like orphans. We don't know. We're going from here to there, running every day, spending our time in things that we don't really need to do. We make our life so complicated, and you can see that in society outside. And you are especially privileged because you have this vision, or you have this alternative that your spiritual master has given you. He has opened your eyes with the torchlight of knowledge.
Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. And without that spiritual master, where would we be? We would be like lost children on the streets, wandering aimlessly, and again have to enter another womb, and again take this material body, and again go through this cycle of growing up, learning a language, going to school, studying in school for 5-10 years, and then getting a job, and then getting married, and then having children, and then that cycle repeats again, and then you get to 60, 70, 80, and you look back, and what have you done with your life? Where is it all got me? Why have I worked so hard? Why have I struggled so much? And what is it for? Many people don't ask this question. What is the meaning of life? So this is our good fortune, that we are able to remember this question every day. What is my purpose? Why am I here on this planet? What should I do with this body? What should I do with the energy that the Lord has given me? Yeah, I have so much power. I have so much potential as a human being. I can change myself, and I can change others around me. I can change even society. We know people, great personalities, that have been able to do that. And our spiritual masters in our tradition, our Guru Parampara, they have given the most exalted wealth to us. So we are the bearers of that torchlight that we carry for our spiritual masters, that we give to others, share with our family members. Yeah, first we change ourselves, of course. Yeah, we practice what we preach, and we act according to our qualification. We don't pretend to be anything that we're not. Vaishnavata is saralata. To be a Vaishnava is to be simple. Simple, not duplicitous, not hypocritical. Yeah? So by doing this, we set an example to others, and we teach our children that principle, and we practice bhakti in our homes, and that becomes Vaikuntha. It becomes even more than Vaikuntha. It becomes Golok Vrindavan, because where Harikatha is spoken, that is Golok Vrindavan. Where Krishna's name is chanted, that is Golok Vrindavan. Krishna and Krishna's name is not different. Nama Chintamani Krishna Rasa Vigra Purna Sudha Nitya Mukto Nama Pinatva Namino. So Krishna and Krishna's name is not different. So I will stop here. Please forgive me for any mistakes, and I'm very happy to be here in your presence and in the presence of Srila Maharaj, and we'll glorify Shri Krishna and his pastimes, Shri Radha and Krishna, and our Guru Parampara on this very auspicious day. Vancha kalpa tribhyascha kripa sindhuvescha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. ज्ञानंजन श्लाकाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So very quickly, I just want to add one point, continuation of Prakash Prabhu and Ananda Mohan Prabhu said. Today we are very fortunate to get together and speak here Harikatha. So on this auspicious day, by whose mercy are we here today? Actually, if we look back, it is the mercy of Srila Bhaktivinoda Thakur, who had this vision. Today is his appearance, I just want to mention, who had this vision. Because Bhagavan is supremely compassionate. His only desire is that the living entities who are suffering in this world, they should come back to home, go back to Godhead. So he comes himself and performs many pastimes, and he sends his devotees, and especially during the time as Kali Yuga was becoming more and more gross, as people were forgetting religion, at that time Sri Bhaktivinoda Thakur appeared, and then he revived this Krishna consciousness movement. He wrote so many books. Most of the songs that we sing in our Kirtan book are by him. Bhakti Bharati Goswami Maharaj said Bhaktivinoda Thakur, all the kirtans from morning to evening, from Mangal Arti to evening Arti, all Arti are written by Bhaktivinoda Thakur. He wrote so many books, like Ananda Mohan Prabhu was saying, what is our dharma, what is the
nature of the soul. So Bhaktivinoda Thakur wrote a book, Jaiva Dharma. What is the dharma of the jeev? In this way, from the beginning to the end, from the most fallen situation, he wrote granthas like Kalyana Kalpataru, Sharnagati. How can a jeev turn his face towards Krishna to the topmost? What our acharyas, what was Sri Satyanandan Gaur Hari Rup Goswami was a jeev, so very nicely in very simple Bengali language. Sri Bhaktivinoda Thakur wrote everything for the living entities, and he had a vision that one day all species of human beings from all different countries will get together and chant the glories of Bhagavan Shri Krishna, Bhagavan Shri Satyanandan Gaur Hari. So we are eternally grateful to this personality, Sri Bhaktivinoda Thakur. Our Gurudev used to say two special contributions Sri Bhaktivinoda Thakur gave. One was manifested Gaurdam, the most compassion. पहला शब्द क्या है? Navdeep Guru Dham and Nasat. God, Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who continued his mission, who very strongly desired that Krishna consciousness should be preached all over the world. So that's why he sent Sri Bhaktivedanta Swami. One of the first things he said to Swami Prabhupada, that why aren't you preaching in the West? So in this way, these two personalities, Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, by their causeless mercy, by their endeavors, Bhaktivinoda Thakur wrote more than 100 books. You know, so by their causeless mercy, we are all gathered here. So on this auspicious day of offering our Pushpanjali, the lotus feet of Srila Bhaktivinoda Thakur, that we are here. Thank Vancha Kalpataru. कौन सा भाषा बोलो? हिंदी बोलो इंग्लिश हाँ? यहाँ पे जो घरवासी लोग हैं कि हिंदी में बोलो तो ये लोग समझ सके, पर हमारे डिवोटीज को हरे कृष्णा जो हिंदी समझते हैं वो सब आगे आ जाए. All those Indian speaking devotees, Maharaj is asking them to come forth, and all those नाम श्रेष्ठं मनोजीवितस्वरूपं रूपं तस्सग्रजं उर्वरीं मातुरीं पृष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमोह राधिका माधवासं रक्तजस्य प्रतीतकृपया श्रीगुरु नतोऽस्मि. तवैवास्मि न जीवामि तया विना एते विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अभी सामने आज गृहस्वामी कौन कौन है? ये अच्छा हाँ? कौन? पिताजी है. अच्छा हाँ थोड़ा नहीं ठीक है आप बैठ बढ़िया. सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिलभमन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ. तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गुरुदेव गोस्वामी महाराज
श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वचन वृंद, मातृवृंद, गुरुगत सज्जन वृंद एवं हरि कथा पिपासु सत्रवृंद, सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जय श्रील भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत आनंद रस की बात है, हम लोग आपके घर में आज ऐसे पावन तिथि पर उपस्थित हुए हैं। पवित्र तिथि, कौन सा तिथि है आज? वामन द्वादशी। कौन सा तिथि बताया? वामन द्वादशी। स्वयं भगवान वामन देव आज प्रकट हुए। कश्यप और अदिति के गर्भ से स्वयं भगवान वामन देव प्रकट हुए। और ये वामन द्वादशी हम आज मना रहे हैं। साथ ही साथ आज हम जिस गोस्वामी पाद की तिरोभाव तिथि भी हम लोग मना रहे हैं। आविर्भाव तिरोभाव विधिमात्र है। भगवान स्वयं भगवान जैसे उनके आविर्भाव और अंतर्ध्यान आदि दिखाए गए, केवल नित्य ही है, तथापि लोक लीला के अनुसार प्रकट हम कहते हैं, प्रकट और अप्रकट, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, प्रकट एंड अप्रकट कहते हैं। और तीसरी जो है, आज हम लोग की गौड़ीय संप्रदाय की विशेष उज्जवल नक्षत्र स्वरूप जो है सप्तम गोस्वामी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की आज क्या आविर्भाव तिथि। देखो, जीवों के जब सौभाग्य उदित होता है तब ऐसे ही संयोग बन जाता है। इसलिए आप कितने सौभाग्यवान हैं ये आप अनुमान लगा नहीं सकते हैं। अभी शायद आपको पता नहीं है, आई थिंक अभी अभी आप नए नए जुड़े होंगे सहित, किंतु देखो, भजन करते करते साधु संग महिमा और भक्ति के बारे में जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा या आज तिथि कौन सा तिथि है। जीवन में तो अनेकों तिथि आ ही जाता है, चले ही जाता है। जैसे संसार के लोग अनेकों उत्सव आदि मनाते रहते हैं। अपने बेटा की क्या मनाते हैं? जन्म तिथि मनाते है कि नहीं? आपके बेटा की जन्म तिथि कब है? 27 नवंबर। मैं आ जाऊंगा, ठीक है? बोलो वृंदावन है। और इसके पश्चात भी और भी मनाते हैं अपने, क्या बोलते हैं, विवाह जो क्या वर्ष गांठ मनाते हैं, क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी, बहुत कुछ मनाते हैं लोग, हैं? बात ये सही है कि नहीं? किंतु देखो, आज हम जिस उत्सव को मना रहे हैं, जिस उत्सव में ऐसे वैष्णव लोग उपस्थित हुए हैं, वो दिन क्या है? आज वामन देव, स्वयं भगवान वामन देव प्रकट हुए। ये साधारण नहीं है, साक्षात भगवान वामन देव प्रकट हुए। लोगों को तो पुत्र तो होता ही है, सब पुत्र संतान तो सब प्राणी मात्र ही जन्म देते, किंतु भगवान के जन्म देना ये कोई साधारण बात नहीं। भगवान की तो जन्म नहीं होती। गीता में भगवान कहते हैं, जन्म कर्मोचे में दिव्यम जो व्यक्ति है, मेरे जन्म कर्म जो है ये क्या अलौकिक कार्य, जन्म कर्मोच में दिव्यम, दिव्य। और इसी तत्व की जो जान लेते हैं, मृत्यु के पश्चात वे मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं, और पुनः इस संसार में उनको आना नहीं पड़ता है। देखो, आप एक छोटी सी कहानी में सुनाता हूं। प्राचीन काल में
है। कृष्णी और सुतपा ये दोनों घोर तपस्या करने लगे। एक हाथ ऊपर में उठा दी और पैर की जो अंगूठा है ना उसके ऊपर ब्रेक करके खड़े होकर के तपस्या करने लगे, कठोर तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हुए, हजारों साल तपस्या के, एक दिन नहीं हजारों साल तपस्या करने लगे। ये सत्यजुग की कथा है। तब उस समय स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। विष्णु कहने लगे कृष्णी सुतपा परम बुरी वर मांगो जो तुम चाहते हो। तो उस समय कृष्णी सुतपा कहने लगे प्रभु यदि वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए, आपके भांति एक पुत्र मुझे प्राप्ति हो। क्या प्राप्ति हो? पुत्र प्राप्ति हो। भाई भगवान से मांगना है तो संसार की वस्तु मांग करके हम क्या करेंगे? धन संपत्ति जो कुछ भी मांग लो एक दिन तो चला जाएगा। धन संपत्ति माल खजाना साथ में कुछ नहीं जाएगा। जाना तुझको पड़े अकेला भजले हरि का नाम रे, कृष्ण नाम तू भजले मनुआ ये भव सागर पर जाएगा। तो भगवान से उन्होंने क्या मांगा? ये आपके भांति एक पुत्र हमें प्राप्ति हो। तो उस समय भगवान विष्णु कहने लगे हे कृष्ण सुतपा मेरे भांति पुत्र संभव नहीं। क्यों? मैं ही तो एक हूं। आई एम यूनिक एंड अनपैरेलल्ड। मैं अद्वितीय और मेरे बराबर कोई हो नहीं सकता, इसलिए ये व्रत मैं दे नहीं सकता है। किंतु कृष्ण सुतपा कहेंगे प्रभु नहीं, मैं यह वर चाहता हूं आपके भांति एक पुत्र मुझे प्राप्ति हो। तब उसमें भगवान कहने लगे हे कृष्ण सुतपा सुनो, मैं ही तुम्हारे जो है 3 जन्म में 3 बार पुत्र होकर के आ जाऊंगा। कितने बार? 1 बार नहीं, कितने बार? 3 बार है? 3 बार ही तुम्हारे पुत्र होकर के आऊंगा और हर जन्म में तुम्हें मैं याद दिला दूंगा है? क्योंकि संसार में हम जब शरीर छोड़ देते हैं भूल जाते हैं कि नहीं? पूर्व जन्म के आपके इतिहास याद है? पूर्व जन्म में आप कहाँ थे? कुछ पता ही नहीं। पता है आपका? कहां से आए आप? Where have you come from? स्वर्ग से आए कि है पाताल से आए? कहां से आए पता है? डू यू नो? आपको पता है? तुलसीदास जी भी कहते हैं हाँ कहां से आपको पता है? ये बात मैं बाद में बताऊंगा, वो सब आपके ललाट पर लिखा है? कथा के बाद मुझे पूछ लेना, मैं बता दूंगा आप कहां से आए। हाँ भाई याद दिला दूंगा मैं झूठ नहीं करूं, तुलसीदास जी कह रहे। चलो आगे कथा सुनाता हूं। देखो पहली जन्म में जो स्वयं भगवान कृष्ण और सुतपा के पुत्र होकर के आए, उस समय भगवान के नाम हो गया कृष्णी गर्भा। क्या नाम बताया? कृष्णी गर्भा। कृष्ण और सुतपा के पुत्र होकर के स्वयं भगवान पहली जो है उसके कहा जाता है कृष्ण गर्भा नाम है। दूसरी जन्म है वही कृष्ण और सुतपा कश्यप और अदिति होकर के प्रकट हुए और उस समय स्वयं भगवान नारायण है यह वामन देव के रूप में ही वामन देव भगवान की जय। तीसरी की कथा जन्म की कथा इस प्रकार वर्णन है। स्वयं कृष्ण और सुतपा कोई तीसरी जन्म में देवकी और वसुदेव के रूप में आए और देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए, जो कंस के कारागार में प्रकट हुए। भय प्रकट दीन दयाला देवकी हितकारी। रामचंद्र के कौशल हितकारी हम कहते हैं क्या? किसके हितकारी? देवकी हितकारी। भय प्रकट दीन दयाला
कौशल्या हितकारी। और उसमें स्वयं भगवान भी कहने लगे, हे देवकी और वसुदेव, मेरे स्वरूप के दर्शन करो, मैं ही तुम्हारी वो इष्ट देव हूँ। सत्य युग में तुमने जो कठोर तपस्या की है, और वही मैं तुम्हारी इष्ट देव नारायण हूँ। उस समय कंस के कारागार में स्वयं भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म के रूप में उनको दर्शन दिया। इसका की कथा मैं बताता हूँ। अभी जिस कथा हम आ रहे हैं, प्रसंग जो है वामन देव की कथा है। तो वामन देव कहां से प्रकट हुए? कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। ये भी बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट वामन देव की कथा बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। इसकी कथा प्रसंग वर्णन करते हुए देखो, आगे की थोड़ी सी कथा आप लोग के स्मरण करा देता हूं, है कि 4 कुमारों के अभिशाप से है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार के अभिशाप से वैकुंठ के 2 द्वारपाल थे। कौन था वो? जय और विजय, जय विजय है। और वो लोग अभिशप्त होकर के एक धराधाम में आए। 3 जन्म के लिए उनके अभिशप्त हो गया, असुर जनी प्राप्ति किया। पहले कहा गया उनके पहले जन्म में सत्य युग में उनको हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म लेना पड़ा। उस समय स्वयं भगवान श्री हरि वराह के देव के रूप में प्रकटित हो करके हिरण्याक्ष को वध किया। और इसके पश्चात हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु उनको भी स्वयं भगवान नृसिंह रूप अवतार लेकर के उनको वध किया। इसलिए नृसिंह प्रहलाद की कथा आप लोग जानते होंगे। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बोले देखो, नृसिंह प्रहलाद की कथा जी श्रवण करना बहुत बार दूर की बात है। केवल नृसिंह प्रहलाद नाम चरण कर लिया, सारे पाप नष्ट हो जाता है। जीवन में कहीं आपकी कभी विपद आपत्ति आ जाए, क्या करोगे? एक बार नृसिंहदेव प्रहलाद को नाम ले लो। बोलो नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय, नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय, नृसिंह जय जय प्रहलाद जय जय। हितो नृसिंह भरतो नृसिंह, हितो नृसिंह भरतो नृसिंह। जत जत जामि तत नृसिंह, जत जत जामि तत नृसिंह। अंतर नृसिंह बहिर नृसिंह, अंतर नृसिंह बहिर नृसिंह। नृसिंह मामि शरणं प्रपद्ये, नृसिंह मामि शरणं प्रपद्ये। कर कमल वरिनख अद्भुत सिंह, ललित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्। केशवधृता निर्मलिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब कर कमल वरिनख अद्भुत श्रृंग, दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्ग। केशवधृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। जय भक्त वत्सल से नृसिंहदेव की जय। जय जय श्री राधे। मैं इसलिए कह रहा, देखो जीवन में कभी आपकी विपत्ति आपत्ति आ जाए है, कहीं भी आप किसी काम में जा रहे हैं, घर से निकालो,
आपकी दुकान है क्या बिजनेस है? दुकान पर बैठते हैं। भाई देखो दुकान जब खोलते हैं ना, और दुकान जब आप बढ़ाते बंद करते हैं, नृसिंहदेव के नाम करके दुकान खोलना, देखना और क्या प्रभाव होता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा है। ये इतने ताकत जो है गुरुवीर महाविष्णु चरंतो सर्वतो मुखम निष्कविशनं भद्रं नित्य नित्य नमाम्यहम्। ये नृसिंहदेव बहुत प्रभावशाली, सारे तुम्हारे अनर्थ को, जितने भी कष्ट दुख आ जाए सब नाश कर। कोई शत्रु है तुम्हारे ऊपर कुछ करके रखा है, पता नहीं करते कि नहीं करते, हम तो उसमें कुछ जाते नहीं। यदि आप एक बार नृसिंह मंत्र और नृसिंहदेव के नाम लेकर के करें तो सारे आपके बाधाएं। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। बहुत प्रभावशाली। आदि की कथा सुनाता हूँ जिसके मैं कह रहा था, यही बलि महाराज की कथा है। कश्यप अदिति के पुत्र होकर के स्वयं भगवान वामन देव के रूप में प्रकट। क्यों? देखो हिरण्यकशिपु के पुत्र कौन है पता है? प्रहलाद महाराज भक्त बने है। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। प्रहलाद के पुत्र कौन है? विरोचन, वो भक्त नहीं था है। अब विरोचन के पुत्र कौन हुए? उसके कहते हैं बोलो बलि महाराज की है। बलि महाराज है, इन्होंने क्या की, बहुत प्रभावशाली थे। स्वर्ग मर्त्य पृथ्वी जगत के जो है उन्होंने जय कर लिया था है? देखो स्वयं भगवान एक वचन दिया, भक्त के कहीं भी कोई कुछ कष्ट आ जाए उसकी रक्षा करते हैं। तो ये बलि महाराज जब इस स्वर्ग राज्य ले लिया है, इंद्र आदि देवता लोग स्वर्ग छोड़कर के इधर उधर भटकने लगे, तो उस समय लंबी तो कथा है, संक्षेप में बताना है। अदिति के पुत्र होकर के स्वयं वामन देव भगवान प्रकट हुए। उस समय देखो बलि महाराज असुर के जन्म लेकर के भी ब्राह्मणों को आदर करते थे। शास्त्र में लिखा गया नमो ब्रह्मण्य देवाय, इसके बाद क्या? गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्देवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देखो भगवान प्रसन्न होते हैं कोई गो और ब्राह्मण की यदि आदर करे। किसको आदर करना चाहिए? गो और ब्राह्मण है। कभी गो वध करना नहीं चाहिए। गो मांस खाना तो बहुत दूर की बात है? कहीं गो गाय के कभी अनादर होना नहीं चाहिए है? यहाँ तो भी शास्त्र में लिखा है प्रातः काल में उठ करके गायों के यदि थोड़ा सा घास भी खिला आपके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होगा। बात सही है? और ब्राह्मण का आदर करो, ब्राह्मण के अनादर मत करो। भगवान प्रसन्न होते हैं दो चीज, गाय और ब्राह्मण। हम इसलिए कर रहे हैं, देखो बलि महाराज असुर कुल में जन्म लेकर के भी कैसे ब्राह्मण का आदर करते थे। बलि महाराज यज्ञ के कितने यज्ञ श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है। बलि महाराज इतने यज्ञ करने लगे, यज्ञ करने के समय कुश बिछाया जाता है। आपके नाम क्या है? अमन। आपके दो भाई में दिख रहा, दो जो जमन जैसे लग रहे, लव कुश जैसे लग रहे थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों के फेस एक ये मैं सोच रहा था कि ये लव कुश आज है, एक लव और एक कुश। बोलो वृंदावन बिहारी। चलो बहुत सुंदर है। आपके माता पिताजी है हाँ, और माता जी कहाँ है? वाह, जय माता जी की जय, जय पिताजी की जय, जय जय श्री राधे। और आपके परिवार और कौन है? शिवाजी, ये आपके बेटा राम है और शिव।
बहुत राम और शिव बहुत अच्छे। आपकी पत्नी अच्छा मनीषा बहुत सुंदर है, परिवार बहुत अच्छा ही है। मैं देख करके बहुत प्रसन्नता हूँ। पिताजी का नाम ओम प्रकाश जी। पिताजी के नाम ओम प्रकाश जी है, बोलो ओम प्रकाश जी की जय। हाँ बहुत सुंदर। माता का नाम कमीशा हाँ कमीशा देवी। कमीशा देवी। कमीशा देवी की जय। बहुत सुंदर। आप दोनों भाई हैं। हाँ देखते मुझे देख लो, मैं तो शकल देख करके पता लग रहा अजय है। अजय अजय कृष्णदास हरिओ ने अमन अमन कृष्णदास बहुत सुंदर है। भक्त परिवार लग रहे हैं सब, अच्छी बात। सबके गले में तुलसी माला है। आजकल तो कोई गले में तुलसी माला रखना नहीं चाहते, और थोड़ा भी तो हमारे भक्त भी रखना नहीं चाहते हैं, रखे तो वो अंदर में रखते हैं। तो मैं आपको देखा, देखो गले में कैसे सटा करके रखे है कि नहीं? पहले ऐसी होनी चाहिए है। आजकल देखो हम शास्त्र में कहते हैं गले में तुलसी माला होनी चाहिए है। ललाट में तिलक, देखो आप लोग की तिलक कैसे सुंदर है। आपकी भी पत्नी है नहीं, देखो इनके भी तिलक है, उनके भी तिलक है, आपके पिताजी की भी तिलक है, माताजी की भी तिलक है। ऐसे किसी परिवार की कहते हैं भक्त परिवार। हमारे भक्तिमान ठाकुर जी कहते हैं जिस गृह में सभी एक तन मन होकर के भजन आदि करते हैं वो गृह नहीं है। वो गृह क्या कहा जाता है जानते हैं? गोलोक वृंदावन है। यदि न गृह भजन देखी गृहते गोलक भाय, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पाय। बोले जिस गृह में सभी लोग एक तन मन होकर के, यू अंडरस्टैंड, एक तन मन होकर के भगवान के भजन करते हैं। और आपके घर में तुलसी भी कैसे सुंदर है। साक्षात वृंदा देवी है, नित्य गुरु वृंदावन धाम से प्रकट हुई है। शास्त्र में लिखा नीलू है तुलसी, नीलू की तुलसी साक्षात जो है वृंदावन धाम से, गुरु वृंदावन धाम से मर्त धाम में प्रकट हुई। ये तुलसी आपका है। कितना सुंदर परिवार है। ऐसे परिवार तो बहुत कम ही मिलता है तो है। किंतु देखो आप, मैं देख करते हैं आज, और ये सब वैष्णव लोग सब आए आए कि नहीं? हमारी कीर्तन सम्राट देखो कितने सुंदर कीर्तन करते हैं। इसको मैं 25 साल से जानता हूँ। मैं आज से नहीं आ रहा, मैं 98 से आ रहा हूँ। 87 में हमारा जन्म है। 87 में तुम्हारा जन्म, 87 में तुम्हारा जन्म, और मैं 98 से मैं इधर आया ब्रिस्बेन मुरुम्बा पहली बार। और तब मैं लगातार केवल 2 साल हो गया है। किसी ने मंत्र मंत्र कर दिया और कोरोना कहाँ से आ गया, बड़ा वृंदावन। ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ। तो हम देखो इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग कितने सौभाग्य देख करके बहुत प्रसन्न हो हैं। विशेष करके भारत भूमि छोड़ करके इस देश में रह करके ऐसे भजन साधन करना बहुत कठिन है। साधारण बात नहीं है। भारत में कहीं रहे तो कोई भी बात नहीं, सभी जानते हैं रामकृष्ण के बारे में, सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं भैया? लोग दुकान में जाते हैं तो कम से कम अगरबत्ती दिखाते हैं, ठाकुर जी की मूर्ति तो रखते हैं। विदेश में कोई थोड़ी रखते आप बताइए। किंतु यहाँ पर आप लोग आकर के यहाँ पर रह करके ऐसे तिलक धारण करके रखे हैं, गले में माला रखे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। इसलिए मैं तो कहता हूँ आप लोग भी साधारण नहीं है। अनेक जन्म की पुण्य राशि जब उदित होता है, श्रीमद् भागवत में कह रहे सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, हे महाराज, हे राजन सुनिए, जब जो कि अनेक जन्म की जब पुण्य राशि उदित होता है तब वो सत्संग करते हैं, और सत्संग में जो है रह करके भजन शुरू करता है। बिनु गुरु बाबा निधि तरु ना कोई, जो बिरिंची शंकर सम होई है। सदगुरु भी धारण किए होंगे है। ब्रह्मा के भांति, शिव के भांति कोई महाज्ञानी भी हो जाए, किंतु जब तक सदगुरु नहीं हो तब तक भगवत राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते है।
ऐसे तो लोग भी भजन कीर्तन करने वाला है, जिस दल में जाते उसी दल में रम जाते हैं, है कि नहीं? और जिस दल में जाते हैं उसी दल के तिलक भी लगा लेते हैं, पुंडरीक तिलक लगा, त्रिपुंड धारण लगा देते हैं, अंग ब्रह्मास्मि है। किंतु आप लोग के देख करके मेरा बहुत प्रसन्नता हुई, ऐसे ललाट पर जो है तिलक धारण करके रखे। शास्त्रों में लिखा है ललाटे तिलकं नास्ति कंठ नास्ति त्रिकंटिका हृदय नास्ति गोविंद स नर पशुरा उदाहृतम। जिस मनुष्य के कंठ में ललाट पर तिलक नहीं रहता है, जो लोग भगवत भजन नहीं करते है, ललाट कंठे नास्ति त्रिकंठे, जो लोग कंठी माला धारण नहीं करते है, शास्त्र में कहते हैं कि जन्म बैठ है। इसलिए धन्य आप लोग, धन्य आपके माता पिता है, धन्य आपके है परिवार। शास्त्र में लिखा है एक ही, देखो आपके परिवार में एक ही व्यक्ति केवल वैष्णव हो जाए है, जैसांग गृहण, जिनकी गृह में केवल एक ही वैष्णव आ जाए है, उसके सारे परिवार सब उद्धार हो जाता है। नृसिंहदेव स्वयं प्रहलाद महाराज जी कहा, प्रहलाद मैं तुमके वचन देता हूं, जिसके परिवार में एक व्यक्ति कंठीमाला धारण करते हैं, हरिनाम करते हैं, भगवत भजन करते हैं, उसके 7 पीढ़ियों में उद्धार कर देता है। एक व्यक्ति नरक में चले गए, पाप किया, उसके जमदूत बार बार नरक कुंड में उसको डुबाने लगे, पायखाने के कुंड है ना, उसमें बार बार डुबाने लगे, और जब डुबाने लगे फिर उठाने लगे, हा हा करके हंसने लगे। तो जमदूत कहने लगे, भाई तुमको इतना मैं कष्ट दे रहा हूं, तुम हंस रहे क्यों, हंस रहे क्यों है? बोले देखो आज जो कुछ दंड देना दे देना मुझे, काल तुम लोग सब मेरे चरण पकड़ करके रोगे और मेरे चरण धोके जल पियोगे। बोले वृंदावन बिहारी। बोले क्यों? बोले मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, मेरे कुल में एक वैष्णव जन्म लेने वाला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले शास्त्र में लिखा है जैसा जिनकी कुल में एक शुद्ध वैष्णव जन्म ले लेते हैं, उसके सारे पीढ़ियां मातृकुल पितृकुल सभी क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। देखो उत्तम भागवत हो तो 21 पीढ़ियां उद्धार हो जाता है, मध्यम हो तो 14 पीढ़ियां उद्धार हो जाता है, और कनिष्ठ अधिकारी भक्त हो तो उनके 7 पीढ़ियां उद्धार हो जाता है। बात ही सही है। इसलिए कह रहे हैं आज जो कुछ करना है करो, कल हम देख रहे हो कल हमारे कुल में एक भक्त जन्म लेंगे, और भक्त जन्म लेने के शास्त्र में लिखा है देवता लोग प्रसन्न होते हैं, और उनके 14 पीढ़ियां जो है वो आनंद में नृत्य करते हैं। पृथ्वी धन्ना, पृथ्वी देवी अपने को धन्य मानते हैं। क्यों? एक वैष्णव जब जन्म लेते हैं सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये शास्त्रीय प्रमाण है, मैं केवल ऐसे नहीं करूं, शास्त्र प्रमाण है। आइए ये कथा में हम इसलिए कर रहे हैं, देखो बलि महाराज दान देने लगे, यज्ञ करने के पहले दान देना शुरू कर दिया, और ठीक उसी समय अदिति नंदन कश्यप नंदन वामन देव भगवान बोटू ब्राह्मण होकर के आए। बोटू ब्राह्मण दान लेने के लिए बलि महाराज भी बोले आप मुझे दान दीजिए। वामन देव भगवान बोले मुझे दान उतना ही दीजिए, मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण कभी मांगते नहीं, और मांगना है तो उतना ही मांगते हैं जितने जिससे उसकी जरूरत है, उतना ही संतुष्ट हो जाए। कलियुग के तो दूसरी कथा है, जितना भी दो वो प्रसन्न नहीं होता, और भी जाने के समय आपको गाली देकर भी जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी। आप मथुरा वृंदावन जाइए,
आपके पूरा आपकी बोलो वृंदावन गया है। किंतु शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जो निर्लोभ होता है, निर्लोभी, जितने मिल जाए उसमें संतुष्ट होता है। उसी प्रकार वामनदेव भगवान कहने लगे, हे बलि महाराज, मैं तो ब्राह्मण पुत्र हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, केवल त्रिपाद भूमि चाहिए बस। कितने? त्रिपाद, त्रि माने 4 ना 5, कितने भाई? अच्छा मैं तो भूल जाता हूँ, कितने होता है भाई? 3। वाह, त्रिपाद भूमि चाहिए, वो भी जो है अपने पैर से मैं नाप करके ले लूँ, ज्यादा नहीं है। मैंने कहना वामनदेव भगवान कैसे, अच्छे छोटा ही तो था, उनके पैर कितना होगा? 1.5 इंच होगा, जैसे 2 इंच। आपके पैर कितने इंची है? नाम मापे ही नहीं अब। 1.5 इंच होगा, 1.5 इंची, 1.5 इंची, 1.5 इंची, कितने हो गए? 4.5 इंच। इतना ही तो जगह फिर उसमें हमारे हो जाएगा, ब्राह्मण के क्या जरूरत है? उतना उतना ही हो जाए, त्रिपाद भूमि हो जाए बस, उसमें बैठ करके भगवत भजन करें। हैं? बलि महाराज हा हा करके हंसने लगे, और तुम जैसे छोटा जैसे है, तुम्हारे बुद्धि भी छोटा जैसा है। अरे राजा के पास आए, मांग लो, 2-4 गांव मांग लो, 5 किलो सोना मांग लो, 10 किलो सोना मांग लो, चांदी मांग लो, है? अच्छा बताओ, मांगना है तो भगवान से हम क्या मांगेंगे? है? सोने चांदी जो कुछ भी मांग ले, मैंने पहले ही कहा, सब एक दिन छोड़कर भी जाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? मांगना है तो भगवान से क्या मांगो? क्या मांगो भाई? भक्ति मांगो, सेवा मांगो, है? हमारे आचार्य बात कहते हैं, मांगना यदि है तो मांगो, क्या मांगोगे? भगवान से भक्ति मांगो, सेवा मांगो। अच्छा कुछ मांग लो, जब आज मैं 4 माला कर रहा हूँ, हे प्रभु मुझे कृपा करो, मैं काल से 6 माला कर सकूं। कितने माला करो? 6 माला करें, भगवान से प्रार्थना कर लो, मांग लो, प्रभु मैं 10 माला करूं काल से। 10 माला कर रहे हैं आप, भगवान से मांग लो, प्रभु मैं काल से 16 माला करूं। बढ़ाते जाओ। मांगना है तो प्रभु से क्या मांगो? नाम, उनके नाम मांगो, नाम हमारे हो जाए, उसके और कुछ नहीं है। न कामने थे नाथ, हे नाथ मेरे हृदय में कोई कामना नहीं, एक ही वस्तु है भगवान। इसलिए वामनदेव भगवान कर रहे हैं, ब्राह्मण बालक हूँ, मुझे क्या चाहिए? किंतु बलि महाराज हा हा करके हंसने लगे। ये ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है, त्रिपाद भूमि देता हूँ, बोले देने के पहले मुझे तो संकल्प कर लो। वामनदेव भगवान कहने लगे, हे बलि महाराज मुझे देने के पहले आप क्या करो? संकल्प करो। हम जो कार्य करते हैं ना, क्या करना पड़ता है? पहले संकल्प करना पड़ता है, प्रतिश्रुति जिसको कहते हैं। अच्छा आचमन करो पहले, है भाई। देखो आचमन करने के लिए गए तो देखा तो पानी में आनी आ रहा है। और बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। जैसे किसने कहा? आपने कहा सुंदर गोपाल गुरु। उनके गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। देवताओं के गुरु बृहस्पति माना जाता है, और असुरों के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। शुक्र के आचार्य शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य पहचान लिया, अरे वामनदेव तो साक्षात विष्णु भगवान है, ये तो बलि महाराज से मेरे शिष्य सारे कुछ ले ले, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। शिष्य रहे तो गुरु से कुछ मिलता रहता है। गुरु दक्षिणा देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? गुरु धारण करने के बाद गुरु के कुछ साल में तो कुछ देना ही पड़ता रहता है। क्या करते हैं? देना पड़ता है, नहीं नियम है, हम बता रहे हैं। और शिष्य ही नहीं रहे कौन देंगे भाई? शुक्राचार्य कर रहे, विचार कर रहे हैं, ये तो छलिया है, ये वामनदेव विष्णु छलिया है,
ये तो सब कुछ हमारे शिष्य सब कुछ हड़प लेंगे, अब मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कहने लगे बड़ी ये छल कपट है, ये स्वयं विष्णु है, तुम्हारे पास आए हैं ऐसे दिखा कर, छोटा बोटू दिखा करके आए, सब तुम्हें ले ले। देखो बलि महाराज क्या बोले, अहो मैं धन्य हूं, अनंत विश्व ब्रह्मांड के जो नायक स्वयं भगवान आज मेरे घर में कैसे आए हैं? भिक्षा मांगने आए, भिक्षुक के रूप में आए हैं। कितने में सौभाग्यवान है, इससे और क्या है? अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के लोग भगवान के पास मानते हैं, आप किसी पास खड़े होते हैं? भगवान के पास है कि नहीं? हम तो कहते हैं इस संसार में जितने लोग हैं ना सब भिखारी है। हम तो भगवान एक छोटी सी कथा बांके बिहारी की कथा सुना देता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल है। कुछ दिन पहले एक सेठ जी बांके बिहारी मंदिर में आए, जब मंदिर में आए, पंडा लोग एकत्रित हो गया, बोले ये बड़े सेठ है। तो सारे पंडित लोग ने किया कि सेठ जी को बड़े बड़े माला दिया, प्रसाद भी आदमी दिया, ठाकुर जी के पास ले गए। ठाकुर जी के सुंदर गजब मुक्ता के जो है क्या हार जो है ठाकुर जी के चढ़ाया, सेठ जी चढ़ाया और बहुत कुछ ऐसे। इसके बाद सेठ जी ठाकुर जी से क्या मांग रहे? ठाकुर जी है आजकल मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, मेरे 3 करोड़ रुपया घाटा हो गया। सेठ जी कह रहे, हे बांके बिहारी मेरे 3 करोड़ रुपया घाटा हो गया। घाटा समझ लो, नुकसान हो गया, मुझे 3 करोड़ रुपया दिलाओ। ऐसे करके सेठ जी ने कुछ पैसा चढ़ाया, ठाकुर जी कर माला चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, और ब्राह्मण लोग आते हैं उनको भी कुछ दान दक्षिणा दिया। ब्राह्मण लोग भी उनकी भी अच्छे तरह से वही प्रसादी माला दे दिया, बाहर आए। देखे ना, हम तुम्हें ज्यादा कोई पूछने वाला नहीं है। सेठ जी जब बाहर है तब उस समय एक बालक खड़े हुए थे, छोटा बालक जो है दांत पर खड़े हुए थे, कह रहे हैं बाबूजी 1 रुपया दे दो, बाबूजी 1 रुपया दे दो। सेठ जी कह रहे काम नहीं है, भीख मांगते हो तुम लोग, क्यों भीख मांगते हो? छोटा बालक कहने लगे बाबूजी हम तो छोटा भिखारी है, 1 रुपया मांग रहे हैं, आप तो बड़े भिखारी हो। भाई सबके सामने छोटा बालक इतने तेजस्वी है, जोर से बोले मैं तो छोटा भिखारी हूँ, 1 रुपया मांग रहा हूँ, आप तो बड़े भिखारी हो। भाई सेठ जी के कोई भिखारी कह करके ऐसे कहे, सेठ जी गुस्सा हो गया कि नहीं हो है, मुझे भिखारी करे। छोटा बालक कहने लगे बाबूजी आप अभी ठाकुर जी के अंदर में जाकर क्या मांगा, क्या मांगा? आप 3 करोड़ रुपया मांगा कि नहीं मांगा? मैं तो आपसे क्या रुपया मांगा? 1 रुपया। आप ठाकुर जी से कितने मांगा? 3 करोड़ रुपया। तो भिखारी कौन बड़ा भिखारी है? वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे करके वो बालक अंतर ध्यान हो गए, वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो बालक कोई नहीं था, कौन था? सबरो बांके बिहारी लाल की जय। हम भिखारी करने से हमारी लज्जा होते हैं, किंतु देखो कौन भिखारी है। ये कथा प्रसिद्ध है वृंदावन में, हमने नया करके कुछ नहीं बताया है। बहुत कथाएं हैं, ठाकुर जी की तो अनेक लीलाएं हैं है? अभी शुक्राचार्य कहने लगे अरे ये विष्णु है, चलिए अच्छा मुझे तो कुछ नहीं पता। देखो विष्णु संग बलि महाराज क्या कर रहे हैं, ओह मैं सौभाग्यवान
अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक पति जो है लक्ष्मीपति जगतपति जगन्नाथ है, लक्ष्मीपति जगतपति जगन्नाथ हमारे द्वार पर आए हैं मान, और ये तो उनके ही है, हमारे थोड़ी है। क्या चीज लेकर के आप आए और क्या चीज लेकर के आप जाएंगे भाई? क्या चीज लेकर तू आएगा, क्या चीज लेकर तू जाएगा? कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। है आपके हाथ में, एक हाथ में हीरे मोती दे दिया और एक हाथ में राम नाम दे दिया, कौन सा लेंगे आप बताइए? है सच है जी, वृंदावन बिहारी अभी बोल रहे हैं ना है, किंतु पते महाराज पैसा तो पहले ले लेता हूँ फिर बात, किंतु वास्तव जी भगवत जी नाम जो ये नाम कोई साधारण नहीं है। जैसे अभी ने इन्होंने कहा ना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नाम। भगवान और भगवान नाम में कोई अंतर नहीं है। देखो राम नाम कृष्ण नाम जप करो, अभी सब कुछ आ जाएगा, धन संपत्ति सब कुछ आ जाएगी है। किंतु वो धन संपत्ति किसमें लगाओ? भगवत सेवा में लगाओ। जैसे आप लोग लगा रहे, भक्त सेवा में लगाओ, भगवत सेवा में लगाओ, जितने जरूरत है ठीक है, अपने संसार पालन पोषण कर जितने जरूरत है, ये भी संसार भगवान की संसार है कि नहीं है? बहुत अच्छा है। जीवन में जो कुछ भी करना है भगवान के समर्पित करके करो, इसमें सुख और शांति। हम इसलिए करें, बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए है, किंतु उनके गुरु क्या बोले, तुम सब विष्णु के दे दो तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, साल में मुझे तो एक बार आना पड़ेगा है। इंडिया में बहुत गुरु होते हैं ना है, वो उन्हें इतने चेला बना लेते हैं है, सब चेला, चेला नहीं है क्या, चीला बना लेते हैं। और सबके घर घर में क्या रखते हैं, क्या रखते हैं? गुल्लक में क्या बोलते हैं भैया? गुल्लक, गुल्लक लगते हैं। हाँ कहते हैं भाई हर साल 100 रुपया उसमें डालना, और मैं इस साल में एक बार आऊंगा और सारे गुल्लक से पैसे लेकर के मैं चला जाऊंगा। बोलो वृंदावन इससे शिष्य की कल्याण नहीं होता है। इसलिए कहा है श्रीमद् भागवत में कहा है, गुरु न साथ सजन न साथ पति न साथ है, दैव न साथ है। वो गुरु गुरु नहीं है, जो गुरु शिष्य के जो है कल्याण नहीं कर सकते है। जो गुरु शिष्य की जो सत्कथा सदुपदेश नहीं देते है, केवल साल में एक बार आ जाते हैं और शिष्य से सारे सलाहना समझते हो, सलाहना लेकर के चले जाते हैं। वो गुरु से कोई काम नहीं होता है। इसलिए कहते हैं सदगुरु क्या करते हैं, सब शिष्य मिले उससे हरि कथा श्रवण कराते हैं, उसके कल्याण के लिए वो सदा सर्वदा चिंतन करते हैं। गुरु अनुसार स्वजन अनुसार, वो गुरु गुरु नहीं है, जो शिष्य के कल्याण नहीं कर सकते है। गुरु अनुसार स्वजन, वो स्वजन स्वजन नहीं है, मित्र मित्र नहीं है, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं है, वो पति पति नहीं है, वो पति पति नहीं है, जो उनकी कल्याण नहीं कर सकते। जो सौंगे तो मृत्यु। इस संसार से सबसे बड़ी भय क्या है? मृत्यु भय। इस मृत्यु भय से जो मुझे उद्धार नहीं कर सकता। मृत्यु क्या है? ये जीवन चक्र जो चल रहे हैं, इसकी गति को रोकना ही है। हम मृत्यु भय से उद्धार हो जाए। कितने बार हम जन्म लिया, कितने बार हमने शरीर छोड़ा है। तावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरी शयनम।
किंतु ऐसे जीवन में कई सदगुरु मिल जाए है? और उनकी कृपा से मेरे जन्म मृत्यु के चक्र क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा है? इसलिए कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के है। जहां तहां गुरु कर लिया, जो मिल जाए है, फिर उसको छोड़ करके वे दूसरी तीसरी चौथी है। ऐसे गुरु से कोई काम नहीं होता है। बहुत लोग है, मैं भी जीवन में देखा, मैंने बहुत है। इससे एक बार माला ले लिया है, फिर सोचना ये गुरु ठीक है कि नहीं है, फिर दूसरे को संत महात्मा आज देखे महाराज मुझे एक माला दे दियो, दे दिया। फिर तीसरे को, या उनके घर में कितने माला हो गए, कम से कम 10 माला हो गया। मैंने कहा कहते भाई तुम्हारी ये 10 माला किसने रखा है? बड़े भाई क्या बताऊं, वृंदावन में गए थे और एक संत महात्मा मिला है, उन्होंने एक माला दे दिया, फिर उसको रखता हूँ, फिर दूसरी तीसरी ऐसी 10 माला। बोले कौन सा माला जॉब करते हो? बोले एक भी जॉब नहीं करता है। अच्छा उससे कोई काम होता है? आप बताओ है? गुरु से मंत्र लिया, गुरु से जपमाला लिया, नाम नहीं करते, इससे कोई फायदा नहीं। इसलिए गुरु करो जान के और पानी पियो गुरु है। तस्मात् गुरु प्रबुद्धे जिज्ञासुतमं शब्दे परिचय निष्णातम ब्रह्मणो उपशमास्य। शास्त्र वचन सदगुरु से दीक्षा मंत्र आदि लेकर के उनके प्रति निष्ठा रख करके भजन साधन करें है। और नहीं तो जैसे मिल जाए है, उससे कोई काम नहीं होगा है। अच्छी तरह से समझो, देखो परखो परखो, समझते हो आप? देखो वो कैसे गुरु है, वो कैसे भजन करता है, उनकी परंपरा कैसे है कि नहीं। गुरु परंपरा जानो भालो मते, उनकी गुरु परंपरा भी देखो है। बड़ी डिसिप्लिन गुरु परंपरा ठीक है कि नहीं है, वो भी हमें देखना पड़ेगा है ना। जहां तहां से बस एक माला ले लिया, ऐसे नहीं, सदगुरु होने चाहिए है। भजनशील हो, और भी क्या, भजनशीलवान भी होने चाहिए। इसलिए हम करें, देखो इस जो आज जो हम बामन देव भगवान के आविर्भाव तिथि पर है, बलि महाराज जी की कथा, यही तो शिक्षा है इसमें है। ये बलि महाराज अपने गुरु शुक्राचार्य क्यों त्याग दिया है? यदि गुरु असद गुरु हो तो गुरु के त्याग देना चाहिए। हमारे शास्त्र में कहा गया 3 लक्षण के द्वारा गुरु के त्याग करो। क्या क्या लक्षण होने चाहिए? यदि गुरु सदगुरु नहीं है, अद्वैतवादी हो, अहम ब्रह्मास्मि जप करने वाले हो, तो गुरु के त्याग करो। दूसरी, गुरु यदि सत्य नहीं हो, असत्य है, कोई तत्व सिद्धांत नहीं जानते, कुछ नहीं है, और ना इसके नियम पालन करता है, ना कुछ करता है, ना शास्त्र ज्ञान है, ना कोई आचार विचार नहीं है। शास्त्र कहते हैं ऐसे गुरु की भी त्याग। तीसरी, जो गुरु वैष्णव निंदा आदि करते हैं, वैष्णव निंदु के मुख को न करें। जो गुरु वैष्णव निंदा करते हैं उस गुरु के कभी आश्रय करना नहीं चाहिए, त्याग देना चाहिए। 3 गुरु और यदि गुरु सतगुरु हो, यहाँ तक भी गुरुदेव हमें गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज चलो गुरुदेव कहते, यहाँ तक भी तुम्हारे गुरु यदि मध्यम अधिकारी हो और सदाचारी हो, तथापि उनकी आश्रय लेकर के तुम भजन करो, उससे तुम्हारे कल्याण नहीं होगा है। इसलिए सदगुरु चरणाश्रय करके भजन करो, जैसे आप लोग भजन कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं, ये बलि महाराज शुक्राचार्य जी किसने त्याग दिया है? वो सदगुरु नहीं थे। इसलिए गुरु न साथ सजन न साथ, वो गुरु नहीं है। जो गुरु हमें सदुपदेश नहीं देते, गुरु सदुपदेश देते सबको, देखो भगवत भजन करो है। गुरु निर्लोभी होते हैं। गुरु के एक ही उद्देश्य है, हमें शिष्य के कैसे भगवान की तरफ ले जाए।
जैसे हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं, कबे लोकनाथ मोरे संगे लइया जाबे, सिरूपेर पाद पद्मे मोरे समर्पिबे, हेन की होइबे मोर नर्म सखी गणे, अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। सदगुरु क्या करते अपने शिष्य को लेकर के जाते हैं धीरे धीरे साधन भजन आदि यथार्थ रूप में शिक्षा दे करके, और धीरे धीरे कहाँ पर ले जाते हैं? रूप गोस्वामी पाद और रूपमंजिल के, और रूपमंजिल से क्या करते हैं? राधा जी के पास ले जाते हैं। कभी लोगों ना तो मोरे संग ले जावे, स्वरूपेर पाद पद में मोरे समान। इसका तो सदगुरु कहा जाता है। तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासुषे उत्तमम् शब्दे परिचय स्नातम ब्रह्मणोपसमाश्रय। वो सदगुरु के 3 लक्षण भी बताए गए हैं, शास्त्र को भी सब शास्त्र में ज्ञान। तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासुषे उत्तमम्, शब्द ब्रह्म में जिसे ज्ञान है माने शास्त्र ज्ञान भी है, जिज्ञासु है, और विषय से वैराग्य है। अनासक्त के रहते, भगवत भजन में रहते, लिप्त रहते, अष्टकाल लीला में डूबे रहते हैं। ऐसे सदगुरु चरणाश्रय करके, इसलिए बलि महाराज ने क्या की? क्या? इसको त्याग दे दिया। किसको? शुक्राचार्य है, और दान, किंतु तथापि गुरु भी कैसे कम है? गुरु भी कम नहीं है। शुक्राचार्य क्या करने लगे? देखो अपने जोग बल से है, वो जो गंगा सागर होता है ना, जो पानी डालते हैं आत्मा लेने के, उसके अंदर में घुस गए, पानी नहीं आ रहा। भगवान वामन देव विचार करने लगे, शुक्राचार्य तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तब से वामन देव भगवान कहने लगे, बोली जरूर कोई ये गंगा सागर में उसमें जो छोटा जो छेद है ना, उसमें कोई पत्ता लग गया से, थोड़ा इधर से कुछ लेकर के थोड़ा छेद कर दो। बोलो देखो कुछ लेकर के छेद करने लगे, रक्त खून आने लगे उनके आंख। शुक्राचार्य के आंख क्या हो गया? काना हो गया, घायल हो गया, और वो भाग गए। इसलिए आज तक भी लोक प्रथा है, काना शुक्र कहा जाता है। क्या बोला? काना शुक्र। क्यों? जो भगवान की सेवा में बाधा देते हैं उसको यही से ही दंड मिलता है। शुक्राचार्य बलिदेव बलि महाराज की सेवा में बाधा दे रहे, कहाँ वामन देव भगवान की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए उनको भी दंड दिया, शुक्राचार्य के दंड दिया। समझ में? हाँ। फिर यहाँ पर भी लीला भी हो रही, बहुत सुंदर है। आचमन किया, बोले मैं दूंगा। बलि महाराज ने आचमन करके मैं दूंगा, बोले उस समय बोले अच्छा ठीक है। क्या बोले? एक पैर को दिखा के अपने पैर से सारा पृथ्वी नाप लिया। दिखा तो छोटा, उन्हें बोले तो मेरे अपने पैर से नाप लूंगा ना, पूरा पृथ्वी को नाप। दूसरी पैर के द्वारा क्या की? सर्वलोक के नाप है। बोले तीसरी पैर थोड़ी होता है, आपके कितने पैर है? 2 है। तीसरी पैर 3 पैर किसको होता है भाई? किसी को नहीं। 4 पैर के बात में हम लोग सुनते हैं। 4 पैर किसको होता है? चतुष्पद कहा जाता है ना। चतुष्पद किसको कहा जाता है? पशु के। पशु के कितने पैर होता है? 4। 2 पैर होता है मनुष्य में, और पशु में कितने पैर होता है? 4। अच्छा 3 पैर कहाँ है? देखो वामन देव भगवान तो कम नहीं है ना, भगवान है ना वामन देव, उन्होंने तृतीय पैर के जो है प्रकट कर दिया। बोले बलि महाराज बोलो इस पैर को मैंने कहाँ रखूं? है देखो उस समय स्वयं बलि महाराज विचार करने लगे, मैं भगवान के सब कुछ दिया है, धन संपत्ति सब कुछ दिया, किंतु अपने को तो नहीं दिया। हे प्रभु आप कृपा करके ब्रह्मा आदि लक्ष्मी आदि के दुर्लभ आपके चरण कमल मेरे सिर पर
तो केवल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब उस समय वामनदेव भगवान बलि महाराज की सिर पर रखा उनको और पाताल लोक में उनके प्रवेश कर। ये समस्त बहुत वर्णन है। हम इसलिए ये कह रहे हैं, आज देखो वामन और बलिदेव की कथा श्रवण करने से समस्त प्रकार बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण कर दिया, यदि कि वामन बलिदेव बलि के ये कथा श्रवण करे उनकी संसार बंधन अपने आप नाश हो जाए। वही वामन देव की चरण जो स्वर्गलोक के ऊपर चले गए है, और स्वयं ब्रह्मा जी उस चरण के जो है धो करके वामन देव के चरण के धो करके कमंडूल में रख दिया था। और परवर्ती काल में सगर वंश में भगीरथ प्रकट हुए और भगीरथ उसी के एक बूंद जल को जाए संसार में प्रकट कराया। इसको कहा जाता है क्या? गंगा। बोलो गंगा देवी की जय। सर्वलोक में गंगा मंदाकिनी के रूप में, पाताल लोक में भगवती के रूप में, और ये भूतल में गंगा अथवा भागीरथी के रूप में विराजमान है। बोलो गंगा देवी की जय। यह बलि और वामन देव की कथा को श्रवण करे वो समस्त पाप से मुक्त हो जाते हैं। बोले भगवान वामन देव की जय। जय जय श्री राधे। इसमें थोड़ी सी कथा करके मैं बंद कर देता हूँ, आगे काल कथा सुनाएंगे। अभी आपके समय भी हो गया, 9 बज गए। आपके अधिक समय मैं लेना नहीं चाहता हूँ। देखो एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ। जब वामन देव भगवान बलि महाराज के जगस्थली में पहुंचे और देखो भगवान वामन देव के देखने में तो सुंदर भगवान तो है ही है। भगवान कोई बुरे नहीं होते, देखने में बहुत सुंदर है, नवयौवन संपन्न, देखने में सुंदर, और उनके शरीर से इतने दिव्य अंग कांति छटा निकल रहा है। उस समय देखो बलि महाराज के कन्या रत्नावली, क्या नाम? रत्नावली। और देख करके प्रसन्न हुए, ऐसे सुंदर बालक, ये यदि मेरे पुत्र होते हैं, इनको मैं स्तन पान करा। देखो भगवान के निकट कोई भी कुछ थोड़ी सी प्रार्थना कर ले भगवान पूरा कर देते हैं। इसलिए भगवान के क्या कहा जाता है? वंछा कल्पतरु। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे कोई भी थोड़ी सी प्रार्थना कर लेते हैं, चिंता कर लेते हैं, इच्छा कर लेते हैं, भगवान के करते उसकी सारी इच्छा को पूरा कर। इसलिए भगवान के क्या कहा जाता है? वंछा कल्पतरु। बलि महाराज जी के कन्या वामन देव के देख करके मनी मनी चिंतन करने लगे, और ऐसे सुंदर बालक है, और कितना सुंदर है, दिव्य से है। यदि मेरी पुत्र मैं उनको स्तनपान कराए। आहा, भगवान कहने लगे एवमस्तु, मैं होती अवश्य ही तुम्हारा स्तनपान। फिर जब वामन देव भगवान उनकी पिताजी की बलि महाराज की सारी संपत्ति छीन लिया, स्वर्ग मर्त पाताल तीनों तो ले ही लिया, और उनको पाताल लोक में नीचे भी उनको नागपाश में बंद कर। और देख करके उस समय वो रत्नावली, बोले कैसे धूर्त बालक है, मेरे पिताजी के सब कुछ ले ही लिया, और लेकर के यहाँ तो भी क्या उनको भी नागपाश में नीचे भी बंद कर। कैसे छल कपट है, दिखाया छोटी छोटी पैर, और लेने के समय क्या किया है? मैंने तो सोचा था इसके स्तन पान करा। हाँ स्तन पान करा, स्तन में कालकूट विष लगा करके मैं इसके मार दूंगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान वामन देव मणि मणि चिंतन करने लगे, हे रत्नावली मैं भगवान हूँ। भगवान कभी मरता है? भगवान मर गया कोई सुना है? आजकल तो भगवान जन्म लेता है, भगवान भी मर जाता है। कितने भगवान कहकर लोग पीछे दौड़ते रहते है कि नहीं? और वही भगवान कहाँ पड़ा रहते हैं भगवान को पता नहीं है। भगवान तो जेल से बाहर आ गया है। कंस के कारागार में भगवान जन्म लिया कि नहीं लिया? फिर बाहर आ गया कि नहीं आ गया है? किंतु कलयुग में वो भगवान कहाँ पड़ा रहता है वो जाने। बोलो वृंदावन बिहारी। लोग कैसे जिसको जिसको भगवान कह करके पीछे दौड़ते रहते हैं, जिसको जिसको भगवान कह करके
पीछे दौड़ते रहते हैं। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, ये शास्त्र वचन है? जिसको जिसको भगवान मत सोचो, भगवान के लक्षण है ना, ऐश्वर्य वीर जस श्री ज्ञान वैराग्य प्रसन्न भगवती, 6 लक्षण के द्वारा हम भगवान मानेंगे। जिसको जिसको भगवान के आगे पीछे दौड़ने से क्या होता है? देखो इसमें हम कह रहे हैं, भगवान स्वयं कहने लगे, वामन देव भगवान कहने लगे, हे रत्नावली मैं भगवान हूं, मुझे वामन देव भगवान कहने रत्नावली मैं भगवान हूं, तुम तो मुझे तो मार नहीं सकते हो, किंतु तुम्हारे स्तन प्रति अवश्य ही मैं पान करूंगा। वही रत्नावली कृष्ण लीला में बोले क्या होकर जन्म लिया? पुतना होकर जन्म लिया। पुतना बात मोक्षण लीला श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद श्रवण कराया, जिसके पुतना मोक्षण लीला। इसलिए भी श्रीमद् भागवत में ऐसे सुंदर प्रसिद्ध चरित्र है। पुतना ने कौन सा कर्म किया? नाम तो जप किया ही नहीं, ना कुछ किया। अहो बकीयं स्तनकाल कूटं जिघांसा साधु लेवरे धात्रुचिता ततो अन्नम कम बादयालु शरणं ब्रजेम। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित है, बकासुर के बहन के पुत्र। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, बकासुर के बहन ये पुत्र भगवान को मारने के लिए आई थी। कहां पर? वृंदावन में है। उस समय गोपाल कितने दिन के थे? 6 दिन के बाद है। और पुतना क्या की वेश बना ली, सुंदर वेश बनाई और बना करके गोपाल के पास आ गया मारने के लिए है। और स्तन में कालकूट जहर पड़े। भगवान ने क्या की है, उनके स्तन का प्रभाव को जस्ट टच किया, स्पर्श किया है। अपने सुंदर सुकोमल होठों के दर 6 दिन के बालक, क्या पता है होठों के दर स्पर्श किया, उससे पुतना के प्राण वायु निकले है। और पुतना के प्राण वायु निकले, पुतना शरीर को त्याग छोड़ करके, त्याग दे करके, और उनको कहाँ भेजा? गोलोक में, माँ जसोदा की भाई के लोग। ये अहो बकीयं स्तनकाल कूटम जिघांसा, जिघांसा मारने के लिए आई थी, और भगवान ने उनको कहाँ भेज दिया? गोलोक में। उसने कोई तपस्या किया, ना कोई भजन किया, ना कुछ किया है। किंतु भगवान इसलिए कम बा दयालु शरणं ब्रजेम, ऐसे कोई व्यक्ति है जो ऐसे परम दयालु भगवान श्री के चरण आश्रय करे। पता नहीं कौन सा कर्म। मैं भी आपको हृदय में ये भी प्रश्न जगेगा, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कठोर तपस्या आदि करते हैं, कोई त्याग वैराग्य आदि करते रहते हैं, कठोर तपस्या आदि करते केवल मुक्ति के लिए है। किसी प्रकार मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करते हैं, वो सालक हो, शास्त्री हो, समीप हो, साजी, मुक्ति के लिए तो कठोर तपस्या करते हैं। किंतु पुतना के क्या? पुतना तो कोई कठोर तपस्या नहीं किया, कोई भजन साधन किया, वो भी तो भगवान को मारने के लिए आई थी है? और भगवान ने उनको कहा दे दिया। कौन सा दे दिया? वैकुंठ नहीं, वैकुंठ के ऊपर अयोध्या, अयोध्या के ऊपर द्वारकापुरी, द्वारका के ऊपर मथुरापुरी, मथुरा के ऊपर गोलोक है। उस गोलोक में माँ जसोदा की भाई की परिचारिका के रूप में गति गई है। इसलिए भागवत में इस श्लोक आ रहे, अहो बकीयं स्तनकाल कूटम जिघांसा ततो अन्नम धात्रोचितं ततो अन्नम लेवरे गति धात्री उच्यते धात्रोचितो गति ततो अन्यम कम दयालु शरणं ब्रजेम है। और कोई भगवान के निकट यदि ऐसे प्रार्थना करे, शुद्ध सदाचार होकर भजन साधन करे, उनके कौन सा गति दे देंगे? आप बताओ। आप लोग शुद्ध सदाचार होकर सदगुरु चरणाश्रय करके भजन कर रहे हैं, आप लोग की कौन सा गति प्राप्ति होगी? हम अनुमान लगा नहीं सकते है। वास्तविक सत्य है, जो पुतना की यदि ऐसे दिव्य गति प्राप्ति हो जाए है, वैकुंठ से ऊपर
है? गोलोक में इतना ही तो कहते हैं, वृंदावन में नहीं दिया। उनको कहाँ दिया? गोलोक में कहा। हमारे आचार्य जो बात टीकाकार कहते हैं, उनको कौन दिया? कौन सा गोदी? गोलोक में माँ जसोदा के परिचारिका दासी को। ये की कौन है? आज जो लोग आप लोग ऐसे शुद्ध भजन आदि कर रहे हैं, सदगुरु चरणाश्रय करके, तो भगवान के चिंतन करना पड़ेगा। ये ऐसे से भक्त में कौन सा स्थान देगा? आपके कौन सा स्थान मिलेगा? है? गोलोक नहीं, गोलोक के ऊपर और कोई स्थान है? कौन सा स्थान है? बोलो वृंदावन धाम की जय। गोलोक को धाम नहीं, निज धाम नहीं, तले तस्वीर है। उसमें कर्णकरी का कमल के जैसे करनी का अंदर में जो करनी का होता है ना, ये लोग काला के जो होता है, जहाँ पर केसर रहता है, वही मानो वृंदावन धाम। उस वृंदावन धाम में है जहाँ पर राधा गोविंद की नित्य लीला आदि होती है। उस नित्य लीला में ही आपकी सेविका के रूप में स्थान देंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज गोलोक में नहीं, गोलोक की और परिभाग, ये अत्यंत अंतर कष्ट जो स्थान कहा जाता है? तो आप ऐसे भावना रख करके भगवान के भजन करें। है मैं ये करके अपने भक्तों के यहाँ पर विराम देता हूँ। आगे आने की कथाएं तो है ही है। जीव गोस्वामी पाद के बारे में काल बताएंगे, भक्तिविनोद ठाकुर की कथा जो है, फिर आगे हरिदास ठाकुर की कथा, और काल हम वो क्या बोले नित्य भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की तिरुभाव तिथि भी है, उनकी बारे में भी चर्चा करेंगे। है मुक्त महापुरुष की जीवन चरित कथा कीर्तन करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। थोड़ा ताली से बात करो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम वनवारी। बोलो राधे 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 जय जय राधे, राधे 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 जय जय राधे। बोलो राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे, राधे 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 राधे
सखी निताय बस यहाँ रखो। इसको करना है, इसको आरती करना है, आरती करो।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरि श्री राधा बिहारी की जय। जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय। जय नित्य लक्ष्मण विश्वविद्यालय भक्तिवेदांत श्री महाराज की जय। जय नित्य लक्ष्मण भक्तिवेदांत श्री गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लक्ष्मण भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। श्री गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। भक्ति रखा श्रीधर भक्तों पुरी गोस्वामी भक्ति ज्ञानवती गोस्वामी महाराज की भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय। गुरुवर की जय। गोपी गोवर्धन श्री गिरिराज महाराज की जय। राधा कुंड श्याम कुंड ललिता विशाखादि श्री रूप मंजरी ऋतु मंजरी मंजरी विलास मंजरी रमन मंजरी सखविंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। पावन नित्यानंद प्रभु की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। समेत गौर भक्त विंद की जय। जय श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। विनोद ठाकुर की जय। जय भगवान वामन देव की जय। जय जय श्री राधे। ओम वृंदावन तुलसी देव प्रियाय कृष्ण सचा कृष्ण भक्ति देवी सततै वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। श्री भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज की जय। श्री गुरुदेव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आज की आनंद की जय। महाप्रसाद की जय।